Namaskar, Madam Principal, Dr. Savita Uppal, and Madam Suksham Walia, Coordinator IQAC and in charge Girls Section, and our resource person, Dr. Muhammad Salim. I am Ranju Sharma, Assistant Professor in Economics, Arya College, welcoming all of you to today's webinar on Atmanirbhar Bharat. First of all, I would like to express my tremendous gratitude to our worthy management during this challenging time for sharing the collective wisdom and resources with the staff. I would like to recognize the dedication of the worthy principal, Dr. Savita Uppal, who always stepped forward with flexibility and resiliency. Madam Suksham Walia, Coordinator IQAC and in charge Girls Section, who is always in support with her continued commitment to work together and carry out our educational missions. Without further delay, I would like to invite Madam Principal to address all of you. Madam Principal. थैंक यू रंजू जी। नमस्कार। IQAC आर्य कॉलेज लुधियाना की ओर से शुरू की गई ज्ञान वर्धनी श्रृंखला में आज की कड़ी में आत्मनिर्भर भारत विषय पर विचार करने हमारे मध्य पहुंचे डॉक्टर मोहम्मद सलीम जी, HOD इकोनॉमिक्स, KLST कॉलेज लुधियाना, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर संदीप चनाना जी, KLST कॉलेज लुधियाना, IQAC कोऑर्डिनेटर श्रीमती सूक्ष्म आलूवालिया जी और आज की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्रीमती रचना सेठ जी, इकोनॉमिक्स विभाग के प्रोफेसर रंजू जी, डॉक्टर पारुल एंड किरण जी, अन्य स्टाफ मेंबर्स, प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका आर्य कॉलेज मैनेजमेंट की ओर से, स्टाफ मेंबर्स की ओर से और समस्त आर्य परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत है। आज का विषय आत्मनिर्भर भारत बहुत ही एक विशेष विषय है। सदियों की गुलामी के पश्चात आजाद भारतवर्ष ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। बहुत सारी सरकारें अपनी अपनी योजनाएं लेकर आईं और चली गईं। डेमोक्रेसी होने के कारण, हर बार चुनाव होने के कारण तत्कालीन सरकारों का ध्यान अधिकतर अपनी अपनी पार्टियों को बचाने में या दोबारा से सत्ता प्राप्ति की ओर लगा रहा, जिसके कारण भारतवासियों के हाथ में निराशा ही अधिकतर लगती रही। भारतवर्ष के लोगों के हाथ निराशा लगने के कारण ब्रेन ड्रेन भी होने लगा तथा बहुत सारे लोगों का विदेशों में पलायन होने लगा। विद्यार्थी वर्ग भी अपनी पढ़ाई विदेशों में कर वहीं सेटल होने के सपने देखने लगे और अक्सर ऐसा होने लगा है। लेकिन अब हमारे भारत की जो मौजूदा सरकार है, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है। क्या हम इसमें सफल हो पाए हैं या सफल हो पाएंगे, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे मध्य पहुंचे डॉक्टर मोहम्मद सलीम जी तथा डॉक्टर संदीप चनाना का मैं समस्त आर्य परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, Madam Principal. So, Atmanirbhar Bharat, self-reliant India, is the vision of our Prime Minister, Mr. Narendra Modi. The first mention of this term in the form of Atmanirbhar Bharat Abhiyan during the announcement of the coronavirus pandemic related to economic package announced on 12th May 2020. The mission is to make India a bigger and more important part of the global economy. So now we will be using a PowerPoint presentation to help to communicate key points and facts of the content.
Now, our resource person of today will further elaborate the topic, Dr. Mohammad Salim. I do hereby welcome the distinguished speaker, Dr. Mohammad Salim, HOD of PG Department of Economics, Kamla Lotia SD College, Ludhiana. He is Secretary, Punjab's Economic Association, President of Ludhiana Economic Association, President, Association of Research and Advanced Studies. He is author of 8 books also, and many papers of Mr. Salim has been published in national and international journals. So, welcome, Mr. Dr. Mohammad Salim. Please, sir. Over to you, sir. हाँ जी मैम, हाँ जी प्लीज 1 मिनट में मैं जरा वो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, मैं 1 मिनट सीट ले लूँ कहीं। It's okay. यहाँ हमारे भी ऐसी प्रॉब्लम है। हाँ जी। हाँ जी, should I start मैम? Yes sir, of course. Yes. Yes please. Thank you very much. Good morning to all participants, and particularly first of all, I want to extend my heartiest thanks to Secretary Madam Stisha Sharma ji and Dr. Savita Uppal, Principal Arya College, then convener of IQAC and in charge girl section, Mrs. Suksham Aluwalia ji, Madam Ranju Sharma, Madam Rachna Seth, Kiran, and Dr. Parul. Really, it is a good effort made by all of you as a team. Today, there is a dire need of such topics to discuss and to share with the people of our country, particularly the young generation, that is students. Because until and unless we will not be self-sufficient and self-reliant, then it is too difficult for us to manage the show of our economy. And this Atmanirbhar or self-reliant or self-sufficient India basically is a vision of the Prime Minister Narendra Modi. That is, he is thinking of making India a bigger and more important part of the global economy. मैं इसको इस तरीके से कहना चाहूंगा कि जैसे एक घर में एक बच्चा होता है और उस बच्चे को हम चलना सिखाते हैं इसीलिए कि वो अपने आप चलना सीख जाए, लेकिन पहले जरूरत पड़ती है अपने पांव पर खड़ा हो जाए, फिर हम उसको एजुकेट करते हैं, फिर उसको कोई नौकरी मिलती है या वो अपना बिजनेस करता है ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो सके, सेल्फ रिलायंट हो सके, सेल्फ सफिशिएंट हो सके. With the same line, our Prime Minister is thinking that up to how many years we have to depend upon others. No doubt, don't think this in that sense that we will remain in isolation. It doesn't mean. Self-reliance basically is the ability of country to maintain sufficient income to consistently meet their basic needs, including food, housing, utilities, healthcare, then transportation, taxes, then dependent care and clothing. So self-reliant does not mean containment or putting yourself into isolation. You cannot live in isolation because now this planet is a global village. If we are talking about a small child, then he also needs some sort of help. उसको भी जरूरत पड़ती है. हम उसको उंगली पकड़ के चलाना सिखाते हैं ताकि वो चलना सीख जाए. जब चलना सीख जाए तो हम खुश हो जाते हैं, चलो अब अपने पांव के ऊपर ये खड़ा हो गया. हम जिस भी स्ट्रीट, जिस मोहल्ला में, जिस एरिया में, जिस विलेज में, जिस
शहर में रहते हैं, ऐसा नहीं कि उस शहर की कोई जरूरत नहीं है, उसको भी किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा ही डिपेंडेंट रहे, हमेशा ही अपनी जरूरतें पूरी किसी दूसरे के थ्रू करता रहे। ठीक है, कुछ हमारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि जिनके ऊपर हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। मान लीजिए पेट्रोल है, हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी है, हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। पर अल्टीमेटली हमारा जो एम है वो यही है कि हम मैक्सिमम अपने लोगों की जरूरतें पूरी कर सके, अपने पांव के ऊपर खड़े हो सकें, अपने रिसोर्स जनरेट कर सकें, हमारे जो रिसोर्स है उनको एक्सप्लॉइट कर सकें, हमें बाहर के लोगों की हेल्प कम से कम लेनी पड़े, ताकि हमें ये देखना ना पड़े जैसे वेस्ट बंगाल का फेमन आया था, या हमें 1969 में जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उससे पहले हमें वीट भी इंपोर्ट करनी पड़ी थी। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए हमारे साथ। ये जो पिलर हैं आत्मनिर्भर भारत के, वो 5 पिलर हैं। उन्हीं 5 पिलर के ऊपर हम बात करेंगे डिटेल में, और ये फिर ओपन हो जाएगा डिस्कशन के लिए। जो पार्टिसिपेंट है उनको पूरा राइट है, बल्कि आई वुड लाइक बी द हैप्पीएस्ट वन इफ यू आस्क सो मेनी क्वेश्चंस, only then this seminar will I think so serve its purpose, otherwise it's too difficult. वो 5 पिलर कौन से हैं आत्मनिर्भर भारत के? एक तो सबसे बड़ा पिलर है इकोनॉमी। So until and unless we are not having a strong economy, we are not economically independent, then we cannot move forward, we cannot get the desired growth rate of our economy. दूसरा है सेकंड, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें फाइनेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, और उसमें ट्रांसपोर्टेशन होगी, रोड्स होगी, डैम्स होगी एंड सो ऑन। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का बेस भी हमें बहुत मजबूत चाहिए। तीसरा हमारा जो पिलर है आत्मनिर्भर भारत के लिए, दैट इज टेक्नोलॉजी। और चौथा पिलर है डेमोग्राफी, और पांचवा पिलर है हमारा डिमांड। इन 5 पिलर के ऊपर हम सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। जो बात करते हैं हम कि आत्मनिर्भर के लिए क्या क्या चीजें अब तक हुई, किस किस जगह के ऊपर हम सेल्फ रिलायंट हुए, किन किन एरियाज में हम आत्मनिर्भर हुए, उनमें से कुछ ही चीजें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिए। जैसे मैडम रंजू शर्मा ने बताया कि ये 12 मई 2020 को प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये स्लोगन दिया था, आत्मनिर्भर भारत। वो इसलिए दिया था बिकॉज वी आर हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ दिस पैंडेमिक कोरोना वायरस। तो कई बार कोई प्रॉब्लम भी अपॉर्चुनिटी होती है, कैसे हमने उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना है, एंड दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी द नेचर हैज गिवन टू अस। No doubt we should not afraid from it that we are having this problem, how we can cope up, right? So this is the problem which nature has given not only to India, but so the whole globe is facing this problem. But how we can come out from this problem, how we overpower this problem, that this is the biggest challenge. That's why the Prime Minister of India has given this slogan that there is a dire need of Atmanirbhar Bharat. So based upon that, he has taken so many decisions. तो उन डिसीजन के बेस के ऊपर हम ये कहेंगे कि उन्होंने रिफॉर्मेशन एक इकोनॉमी में करनी चाहिए, ताकि हमारी इकोनॉमी का इन्हीं रिफॉर्म के बेस हम सेल्फ रिलायंट हो सके, सेल्फ सफिशिएंट हो सके। उनमें सबसे पहले है चेंजिंग द डेफिनेशन ऑफ MSME। Changing the definition of MSMEs. Now, this is I think so new definition that up to 250 employees, if you are having, then manufacturing small scale, right, units, then the strength is up to 250 employees. If you are having 250 employees,
then you may be in the category of MSMEs. Then the second decision which the government has taken in the direction of Atmanirbhar Bharat, that is private participation in numerous sectors. So they have opened up various sectors from private sectors, because if you are a best performer, then you will remain in the business. If you are not a better performer, definitely you have to go. So that's why we should not afraid from all these type of the competitions. Why we are afraid? Are we having a lack of confidence, lack of skill, lack of knowledge? If yes, then there is no right to remain in the business. So that's why they are opening up. Those who are performing in a better way, they may earn better. And if you will earn better, then it is a stimulus for the economy of our country. Then they have opened up this FDI in defense. Initially it was 49%, now it is 74%. That is foreign direct investment. जो विदेश के लोग हैं रहने वाले, वो हमारे भारत में डिफेंस में भी अब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. ठीक है, ये ओपन अप किया गया, नॉट 100%. पहले ये 49% थी, अब ये बढ़ाकर 74% कर. आगे इन्होंने जो ओपन अप किया है वो सोलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है. आपको पता है कि हमारे देश में ऊर्जा की बहुत कमी है, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत कमी है. तो ऊर्जा के बहुत सारे सोर्स हैं, जिनमें सबसे ज्यादा और इकोनॉमिकल सोर्स है सोलर एनर्जी. तो इस सेक्टर में जो मैन्युफैक्चर करना चाहता है, जो प्लांट लगाना चाहता है, दैट बिजनेस मैन और द एंटरप्रेन्योर इज वेलकम टू हैव द सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. तो सोलर मैन्युफैक्चरिंग के साथ हमारे विंड एनर्जी है, थर्मल पावर एनर्जी है, कोल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, ये सारे सोर्सेज हैं, बट दिस इज द चीपेस्ट वन. Then you will be surprised to know that we are having this self-reliance in the case of growth of personal protective equipments. You know, this is, I think so, we have learned it from this pandemic, coronavirus. And you will be surprised to know that from the zero production, we are now producing 4,50,000 pieces a day by the beginning of July 2020. तो हम एक दिन में 4,50,000 PPT किट बना रहे हैं, दैट इज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स. और इसमें जो जनरेट कर रहे हैं इनकम, दैट इज टू द ट्यून ऑफ 10,000 करोड़. दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर चाइना. चाइना के बाद हमारा सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है PPE को बनाने के लिए. तो इसमें भी हम, अदरवाइज हमें ये चाइना से इंपोर्ट करनी पड़नी थी या किसी और कंट्री से इंपोर्ट करनी पड़नी थी, तो हमारी जो करेंसी है वो बाहर जानी थी. तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा उस चीज का भी फायदा हुआ है. ये एक जो इशारा था नरेंद्र मोदी जी का कि आपने इस तरीके से काम करना है कि इस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना है. सो दिस वाज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी वी आर एंजॉयिंग नाउ बाय कन्वर्टिंग दिस इनटू अ रियलिटी. दूसरा एक और हमारे आत्मनिर्भर की डायरेक्शन में एक लार्जेस्ट फंड है कंट्री में क्रिएट किया गया, 21,000 करोड़ रुपीस का. दैट वाज सेट अप बाय IIT's एलुमनी. तो इस काउंसिल का बेसिक एम है, दैट इज टू सपोर्ट द मिशन ऑफ आत्मनिर्भर भारत. उसके बाद इंडिया, आप सुन के हैरान होंगे कि इंडिया ने 5G नेटवर्क है वो इंडिया का अपना बनाया हुआ है. दैट्स व्हाई इंडियाज ओन मेड इन इंडिया 5G network was a new basically step towards the Atmanirbhar Bharat. That is, this was launched in July 2020. Then उसके बाद आत्मनिर्भर की दिशा में ही इंडिया ने
import embargo on 101 items in August, यानी कि 101 आइटम्स के जो हम फॉरेन से इंपोर्ट करते थे उनके ऊपर बैन लगाया, उनकी इंपोर्ट बंद करी। इसका मतलब जब हम इंपोर्ट बंद करते हैं, डेफिनेटली वी आर हैविंग दैट सब्स्टिट्यूट, इट मींस those things which we are importing from other countries, we will ban only in that case if we are having the substitute of those goods. तो एक तो 5G के क्षेत्र में या क्षेत्र में हम कहेंगे कि बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी ये, और दूसरा है जो हम आइटम्स बैन कर रहे हैं, इसका मतलब आइदर वी आर सेल्फ रिलायंट और सेल्फ सफिशिएंट, or we have the capacity to produce those items which earlier we were importing. तो केमिकल एंड फर्टिलाइजर में ये भी इस डायरेक्शन में भी काम हो रहा है, बट वी आर फार बिहाइंड देन अदर कंट्रीज एंड वी विल अचीव दिस टारगेट इन 2023। 2023 में हम केमिकल और फर्टिलाइजर में भी सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे। तो उसके बाद इंडिया की एक बहुत बड़ी कोशिश है, आपने सुना होगा दैट देयर इज वेरी ह्यू एंड क्राई एंड इट इज आल्सो ए टॉपिक ऑफ hot discussion nowadays, that 3 farm bill passed to give the farmers the right to choose the price and the people to whom they want to sell. अब इसके लिए जो किसान यूनियन है इसमें बहुत सारी हो सकता है प्रॉब्लम्स हों, क्योंकि मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, ये बर्निंग इशू है। तो ये बिल पास किया गया। अब इस बिल में हो सकता है कुछ कमियां हो सकता है जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ना पूछा गया हो सकता है इसको रिवाइज करना पड़े, हो सकता है उनकी बात कहने की कुछ और हो, हम ना समझ पा रहे हो। So there is a gap between what they are saying and what the people are thinking. So it will only be resolved when they will sit together and chalk it out what are the basic crux or the solution of this type of the problem. So उन्होंने 3 बिल पास किए हैं, वो 3 बिल आपको पता है क्या है और मैं इसको डिटेल में बाद में डिस्कस करूंगा। दूसरा है आत्मनिर्भर की दिशा में जो एक स्लोगन दिया गया है वोकल फॉर लोकल, आपने सुना होगा, ये भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कई बार टीवी के ऊपर अनाउंस भी किया है। इसका मतलब ये है कि वी शुड परचेज एंड प्रमोट आवर ओन प्रोडक्ट्स। जैसे आप एडवर्टीजमेंट देखते हो तो सबसे बड़ी एडवर्टीजमेंट हम अपने आप कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। कई बार आपने मार्केट में ये सुना होगा कि ये चाइनीज प्रोडक्ट है, ये मेड इन इंडिया है, फिर भी हमारा सबसे ज्यादा भरोसा मेड इन इंडिया पे होता है, मेड इन चाइना पे नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि हमें ये पता है कि ये लो क्वालिटी का प्रोडक्ट है। चाहे इंडिया की प्रोडक्ट की प्राइस कंपैरेटिवली ज्यादा हो, पर हम प्रेफर करते हैं इसी प्रोडक्ट को लेना जो इंडिया में बना है। हम ये जानते हैं कि इसकी ड्यूरेबिलिटी होगी, इसकी क्वालिटी होगी, नो डाउट प्राइस में थोड़ा डिफरेंस जरूर होगा, पर चाइनीज प्रोडक्ट की क्वालिटी भी पुअर होती है, ड्यूरेबिलिटी भी नहीं होती, बल्कि वो एश्योरेंस भी नहीं देते कि जी आप ले जाओ, गारंटी कोई नहीं है। दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग, दैट्स व्हाई वी आर मूविंग टुवर्ड्स दिस वोकल फॉर लोकल। तो आपको, हम सभी को इसकी एडवर्टीजमेंट करनी चाहिए। तो जहां जहां हमारी प्राप्ति है, जहां जहां हमने कुछ किया है, जैसे सबसे पहले मैं स्टार्ट हुआ कि अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो आपको पता हो कि 1969 में एक ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, फिर ब्लू रेवोल्यूशन, फिर व्हाइट रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन का मतलब है जहां फिश फार्म या फिश की जो हम पालते हैं उसको पॉन्ड में, ठीक है, उसके बारे में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया और कई गांव में आपको पता होगा कि अभी भी लोग फिश फार्मिंग करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन आपको सभी को पता है, जब हमारी वीट की प्रोडक्शन है बहुत ज्यादा हुई तो उसमें हम सेल्फ सफिशिएंट हुए, सेल्फ रिलायंट हुए, आत्मनिर्भर हुए। उसके बाद है व्हाइट रेवोल्यूशन है जिसमें हमारे पास पोल्ट्री,
एंड पोल्ट्री रिलेटेड अदर प्रोडक्ट्स। तो ये हुआ है। इस तरीके के 3 रेवोल्यूशन जहां हम मिल्क है, जहां हम डिपेंडेंट थे दूसरे कंट्री के ऊपर, उसको छोड़कर हम अपने पांव के ऊपर आप खड़े हुए। तो ये भी सेकंड बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि थी, जहां वो एरिया जहां हम किसी दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, उनमें से कुछ एक का मैं नाम लूंगा, बाकी अनगिनत हैं, मैं सारे नाम तो नहीं ले सकता। आप जानते होंगे कि सेल ये हमारा अपना यूनिट है, दैट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। बहुत बड़ी हैवी इंडस्ट्री है, जहां के ऊपर सारे का सारा मैं ये कहूंगा कि स्टील जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है स्टील से रिलेटेड। देन मेडिकल एंड साइंसेज में हमने एस्टेब्लिश किया है, जिसको एम्स बोलते हैं, AIIMS, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो इसमें अब आपको ये भी पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक एम्स नहीं बल्कि कई एम्स बड़े बड़े सिटीज में उन्होंने एस्टेब्लिश करने के लिए अनाउंसमेंट पहले ही कर चुके हैं, जिसमें हमारे पंजाब में बठिंडा में और श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में, और इस तरीके की मैं 1-2 एग्जांपल दिए आपको। तो ये एस्टेब्लिश किए हैं ताकि लोगों को दिल्ली या चंडीगढ़ ही ना जाना पड़े, इसके अलावा भी वो कहीं और अपने शहरों के नजदीक जो एरिया है वहां जा सकते हैं। देन DRDO, दिस इज फॉर डिफेंस रिसर्च, दैट इज DRDO मींस दैट द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये आपने सुना होगा इसका नाम। इसका एक आगे है, इसी डिफेंस से रिलेटेड है, वो भी अपना अपना यूनिट है, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, दैट इज HAL, HAL, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये भी अम्यूनिशन वगैरह है या एरोप्लेन वगैरह है, ये बनाते हैं। देन ISRO, ISRO, दैट इज इंडियन स्पेस और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए भी मैं कहूंगा कि बधाई के पात्र हैं सारे साइंटिस्ट और साइंटिस्ट कम्युनिटी। प्राइम मिनिस्टर ने इनके लिए भी बहुत बड़ा आपको मंगलयान के ऊपर, मंगलयान हमने भेजा था, चलो एनी हाउ किसी वजह से वो नहीं लैंड कर पाया, लेकिन आई थिंक सो दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट दैट आवर साइंटिस्ट आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द scientists of NASA and other countries. It means we have the capacity to launch such type of the vehicles for the research purpose. So ISRO बहुत बड़ी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो बाकी कंट्री जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं उनकी भी वो हेल्प करती है। मैम आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो। जी हाँ डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा चल रहा है आपका, बहुत अच्छा, प्लीज कंटिन्यू। आगे Yes, sir. है गेल। जो गेल है बेसिकली ये स्टेट ओन्ड नेचुरल गैस प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, गैस से रिलेटेड है। आपने CNG का नाम सुना होगा, आपने LPG का नाम सुना होगा, जो हम घरों में यूज करते हैं। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मॉनिटर करती है। अब देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि आज से कुछ साल पहले हम किसके ऊपर गांव में लकड़ या गोबर वगैरह का यूज करते थे, हम रोटी या सब्जी या किचन का कोई भी काम करने के लिए। लेकिन जैसे ही ये नरेंद्र मोदी जी ने, आपको ये भी पता होगा कि उज्ज्वल योजना, गैस सिलेंडर की योजना, ठीक है, ये भी दी है ताकि गांव में हर एक व्यक्ति जो धुएं में काम करता था, जो बहुत मुश्किल में काम करती थी लेडीज, उनके लिए बहुत आसानी कर दी। ठीक है, तो उसी के लिए एक कमीशन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो देख रही है। ठीक है, देन उसके बाद हमने ये भी आपको सुना होगा, पीछे हमारी चाइना के साथ अब तक कुछ अनबन सी चल रही है, बॉर्डर का कुछ क्लैश है लेह लद्दाख के एरिया में। तो उसके लिए हमने कुछ प्रोडक्ट चाइना के भी बैन किए हैं, बंद किए। अब मेरे को एक बात बताए, आप स्टूडेंट भी सुन रहे होंगे कि क्या फर्क पड़ा हमें अगर हम बैन भी कर दिए, तो हम हैबिचुअल हो चुके थे, तो हैबिट को हटाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सल्यूट टू ऑल इंडियंस
who have accepted this, the decision of our Prime Minister, that we have banned so many products which we were importing from China. अब भी कुछ नहीं है, अब भी हम उन चीज को भूल चुके हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सेटबैक चाइना को पहुंचा है इस बैन करने की वजह से। लेकिन टिल डेट वी आर इंपोर्टिंग नियर अबाउट 75 बिलियन डॉलर का हम अब भी सामान जो है वो चाइना से परचेज करते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल है। ऐसा ऐसा ये भी कम हो जाएगा। जितना हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे उतना हम सेल्फ रिलायंट ज्यादा होंगे, और जितना हम इंपोर्ट कम करेंगे उतना हम आत्मनिर्भर ज्यादा होंगे। अभी कुछ एरियाज है जहाँ के ऊपर गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे डिसीजन लिए हैं इसी दिशा में। नो डाउट वट एवर द डिसीजन यू आर टेकिंग टुडे, it will give you a fruit not tomorrow, but you have to wait for a couple of years. Only then you will realize whether the decision was good or the bad. I think so all the decisions which are taken by our Prime Minister are good for the health and for the economy of our country. उसमें सबसे पहला जो आता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर आता है, क्योंकि इकोनॉमी को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला एग्रीकल्चर सेक्टर है, दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, और तीसरा सर्विस सेक्टर है, राइट। अब इन तीनों में क्या क्या चेंजेस आई, कहाँ कहाँ हम आत्मनिर्भर हुए, कहाँ कहाँ हमारी कुछ कमियां रह भी गई जिनको रेक्टिफाई कर लिया जाएगा बाद में। तो सबसे पहले है एग्रीकल्चर सेक्टर है। तो आपको ये तो पता ही है जो चल रहा है किसान का। सेंट्रल लॉ गवर्नमेंट ने लॉ पास किए हैं, 3 लॉ पास किए हैं। मंडी का है, एक एपीएमसी रिफॉर्म्स है, और दूसरे रिफॉर्म्स है, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटीज है। अब वो ये कहते हैं कि भी आप अपनी प्रोड्यूस को जिस बाहर मंडी के अगर बेचोगे तो अपनी प्राइस से बेचो, जितनी आप प्राइस लेना चाहते हैं। अब यहाँ पर क्लैश है, अब मैं इसको टच नहीं करूंगा, इसको बाद में देखूंगा। उसके बाद है रिवैम्प एसेंशियल कमोडिटी एक्ट एंड डीरेगुलेट ऑयल, पल्सेस, ऑनियन, पोटैटो एटसेट्रा। तो ये जो एसेंशियल कमोडिटी का एक्ट है उन्होंने रिवाइज कर दिया है। इस केस में ऑयल के, पल्सेस, ऑनियन एंड पोटैटो अब ये ओपन मार्केट में है, ठीक है। इसलिए ऑयल की प्राइस, पोटैटो की प्राइस, ऑनियन की प्राइस ज्यादा है। जब सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली इसकी प्राइस भी कम हो जाएगी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में दूसरा है कि 1 लाख करोड़ रुपए फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर के एंड लॉजिस्टिक के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है। तीसरा है एक पैकेज है, आपको शायद पता होगा, सुना भी होगा, ये कोरोना वायरस में ही दिया था, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज इसी दिशा में दिया गया है ताकि हमारा कंट्री है वो आत्मनिर्भर बन सके। उसमें 20 लाख करोड़ में जो मेजर पार्ट है मैं बता देता हूँ। 1.92 लाख करोड़ रुपए है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण स्कीम, ठीक है, उसके लिए दिया गया है। 3 लाख करोड़ रुपए MSME के रिवाइव के लिए दिया गया है। 3 लाख करोड़ रुपए जो माइग्रेंट्स हैं, खास तौर पे जिसमें वेंडर्स हैं, उसके बाद लेबरर्स हैं, तो इन लोगों के लिए इनके खातों में शायद आपको पता होगा 500 पर हेड ये डाल भी दिए गए, और लोगों ने इनको अपनी जरूरत पूरी करने के लिए यूज भी किया। Then 1.5 lakh crore rupee for agriculture infrastructure. Then 48,100 crore rupee for coal and mineral water and 40,000 crore rupee for मनरेगा। ये आप जानते होंगे कि गांव में ये कंपल्शन है कि जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको गवर्नमेंट 100 दिन से बढ़ाकर 200 दिन तक का काम दे रही है, और 1 दिन की वेजिस उनकी मिनिमम 200 रुपए है। अब देखिए इसका मतलब है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है गांव में खास तौर पर उनको रिमूव किया गया है,
महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। देन 40,000 करोड़ रुपए हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज के लिए दिया गया है। तो ये तो मेन है कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या चेंजेस लेके आए हैं ताकि जिससे हम आत्मनिर्भर हो सके। आपको ये भी पता होगा कि इंडिया में 6 लाख से ऊपर गांव हैं। हमारी अब भी 60 से अब पॉपुलेशन अब भी गांव में रहती, 60 to 70%। तो 40% लोग हम शहरों में रहते हैं, बाकी सारी पॉपुलेशन है वो गांव में रहती। जितनी देर तक हमारी बैकबोन मजबूत नहीं होगी, गांव मजबूत नहीं होंगे, गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा, मंडीज मजबूत नहीं होंगी, किसानों को उनकी वाजिब दाम नहीं मिलेंगे, तो हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं कमी होगी। तो इस दिशा में नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर को मजबूत बनाने के लिए, उनका सपना साकार करने के लिए लोगों तक उसकी पहुंच जो बड़ी आसान कर दी है, ताकि लोग उसको रियलिटी में, जो ग्राउंड रियलिटी है, उसको वो देखें, समझें और जो डिफिकल्टीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको वो आसान कर रहे हैं। मैं पहले ही कहा कि इसको टाइम लगेगा। अभी 1-2 दिन के अंदर मैं आज डिसीजन लूं, कल उसका फल आ जाए, ऐसा नहीं हो। पेड़ लगाने के लिए भी जब हम बीज बीजते हैं तो पेड़ जब फल देता है उसको भी 5-7 साल लग जाते हैं। ठीक है, ये लोग बाद में रियलाइज करेंगे कि कितना अच्छे स्टेप्स थे जो ये गवर्नमेंट ने लिए। कहीं कुछ कमियां रह गई हैं, वो मैं मानता हूं, लेकिन उन कमियों को प्लग किया जा सकता है। दूसरा हमारा है इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। अब इंडस्ट्रियल रिफॉर्म में क्या है कि जैसे कमर्शियल माइनिंग ऑफ कोल बाय प्राइवेट सेक्टर। पहले जो कोल माइनिंग होती थी, जो कोला निकालते थे जमीन के अंदर से, वो सरकार ही निकालती थी, सरकार की इंडस्ट्री ही निकालती थी और सरकार के जो एम्प्लॉयज थे वही काम करते थे। अब ये प्राइवेट सेक्टर को ओपन अप कर दिया गया। इससे क्या फायदा होगा कि हम मैक्सिमम जो नेचुरल रिसोर्स है हमारा कोल, उसको एक्सप्लॉइट कर पाएंगे, उसको निकाल पाएंगे। आपको ये भी मालूम होगा कि पंजाब में हमारे कम से कम 4 to 5 आवर शॉर्टेज होने वाली है इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि हमारे कोल की सप्लाई कम होगी, वो स्ट्राइक की वजह से, फार्मर्स का जो आंदोलन है उसकी वजह से। लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दे तो उससे क्या फायदा हो जाएगा कि ये पूरी मैक्सिमम एंड फुलेस्ट कैपेसिटी से, फुल पोटेंशियल से उन नेचुरल रिसोर्सेज को निकालेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे। जिससे क्या हो जाएगा कि हमारी जो है ये माइनिंग इंडस्ट्री कमर्शियल हो जाएगी। दूसरा, जितनी सप्लाई ज्यादा होगी इसकी पर यूनिट कम, जो प्राइस है वो भी कम हो जाएगी। दूसरा, इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्होंने क्या रिफॉर्म किया है जिससे हम आत्मनिर्भर हो सकें, दैट इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन मिनरल सेक्टर। ठीक है, इसमें भी उन्होंने कर दिया कि आप आओ, यू आर मोस्ट वेलकम टू इन्वेस्ट इन दिस सेक्टर एज वेल। ये एफडीआई की मैं आपको पहली बात बता चुका कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसका शेयर 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया। यानी कि हम बेटर क्वालिटी की चीजें हैं जो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट हैं, वो तो गवर्नमेंट के अपने हाथ में है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट opened up at 100% and 26% still it is reserved with the government. So गवर्नमेंट जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, कोई इस तरीके की जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही डेलिकेट चीजें हैं जिनको प्राइवेट के हाथों में देना ठीक नहीं है, वो बंद कर दिया। लेकिन बाकी सारा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है डिफेंस का, उसके लिए एफडीआई को इनवाइट किया गया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए अप टू 74%। देन प्राइवेटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगेन दिस इज ए प्रॉब्लम। आपको गांव में आप सिचुएशन जानते हैं कि गांव में इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स नहीं आती। जब प्राइवेट प्लेयर्स होंगे तो ठीक है, कुछ दाम भी होगा उसका, वो स्कीम्स के अंडर भी हो सकती है, हो सकता है पुअर के लिए कम और जो रिच है उसके लिए रेट ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको प्राइवेटाइजेशन करने से इतना श्योरिटी है कि वो उसकी सप्लाई रेगुलर होगी।
No doubt it may be at some cost, but if you are having a regular supply in your plant, in your manufacturing unit, then you may produce without any interruption. आप जहां जितना मर्जी प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन जब हम 6-6 घंटे का कट, 7-7, 8-8 घंटे का कट देखते हैं या 3 घंटे का कट देखते हैं, तो उससे हमारे मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है उसमें रुकावट आती है। तो इसीलिए हम आत्मनिर्भर की दिशा से थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। देन प्राइवेट पार्टनरशिप इन स्पेस एक्टिविटीज, जैसे मैं इसरो की बात करी है, उसमें भी इन्होंने अब प्राइवेट पार्टनरशिप को ओपन अप कर दिया है कि वो भी आ सकती हैं। अब जो रिसर्च रिएक्टर्स हैं एटॉमिक एनर्जी में, खास तौर पर वो पीपीपी मॉडल के ऊपर बेस्ड हैं। पीपीपी मॉडल का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जैसे आपने सुना होगा कि एक सिस्टम हमारे चलता था पहले, बीओटी, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर। जितने भी टोल लगते हैं सड़कों के ऊपर, आपने देखे होंगे कि गवर्नमेंट इतनी इन्वेस्टमेंट हर सेक्टर में नहीं कर सकती, उसकी अपनी कुछ कंस्ट्रेंट्स है। तो पहले ये रोड्स बनाई जाती हैं प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर हैं, तो फिर इनको ऑपरेट किया जाता है जिससे हम टोल लेते हैं और बाद में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे दोराहा के पास एक टोल टैक्स लगा था, उन्होंने वो रोड बनाई, उसके बाद जब उसकी कॉस्ट पूरी होगी टोल टैक्स के रूप में, तो वो ट्रांसफर कर दिया, अब वो वहां से हट गया। तो इस तरीके से भी हमारी जो है ये प्रॉब्लम है दूर हो सकती है। ये बेसिक जो चीजें हैं वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंडर हमने देखी हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में कौन कौन से जो रिफॉर्म हुए हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कुछ इसकी शॉर्ट कमिंग्स भी हैं आत्मनिर्भर भारत की, ठीक है नहीं, और जो बेसिक फोकस है आत्मनिर्भर का, आत्मनिर्भर भारत का, वो 4 चीजें। अब उन 4 चीजों को आपको समझना है, वो कौन कौन सी। एक तो है लैंड, ठीक है, लैंड के ऊपर कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए, किस तरीके से इसका मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाना है, कौन सी एरिया जो है वो यूज में नहीं है उसको कैसे यूज में लेके आया जाए। दूसरा है लेबर, लेबर रिफॉर्म भी हुए, उनके साथ भी बिल पास हुए हैं। अब जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए थोड़ा सा आसान कर दिया गया कि कैसे वो लेबर को एम्प्लॉय करना है और क्या वेज रेट होगा और कितनी उनको डेज के लिए काम दे सकते हैं, कब उनको रख सकते हैं, कब उनको जो फायर कर सकते हैं। ये सारे जो लेबर लॉ हैं ये भी पास किए। तीसरा है लिक्विडिटी। Until unless we are not having money in our hands, we are unable to generate demand. जब तक हमारे पास कैश पैसा नहीं होगा हम डिमांड जनरेट नहीं कर सकते। आपको ये भी शायद न्यूज सुनी होगी कि जैसे कोरोना वायरस का स्प्रेड कनाडा में, यूके में हुआ और अदर कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्री में हुआ, तो उनकी गवर्नमेंट ने कैश पैसा डॉलर या पाउंड की फॉर्म में बच्चों को या हर एक फैमिली को दिया। उसकी जो मेरे को जितनी नॉलेज है वो $2000 पर हेड ये यहाँ तक उन्होंने दिया। ये वेरी कर सकता है, कहीं कम कहीं ज्यादा भी हो सकता है। और यही हमारी स्कीम है जो 500 रुपये पर हेड गांव में हर रहने वाले व्यक्ति के जिसका आधार कार्ड था उनको मिले। ठीक है, तो इस तरीके की जब लिक्विडिटी आपके हाथ डील नहीं होगी, कुछ नेगेटिव ग्रोथ रेट था, हमारा नेगेटिव ग्रोथ था इकोनॉमी का, वो हमारा नहीं रहा, सभी कंट्रीज का रहा। ठीक है, एक्सेप्ट चाइना। तो वो अब रिवाइव करना शुरू हो गया। वो इसीलिए रिवाइव किया क्योंकि हमने डिमांड जनरेट करनी शुरू कर दी। जैसे डिमांड जनरेट करोगे तो नेचुरली उसको सप्लाई करने के लिए मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। जैसी मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप जाओगे तो आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी पड़ेगी, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से हमारी इकोनॉमी है वो ग्रो करना शुरू हो जाती है। और किसी भी इकोनॉमी का ग्रो करना है उस देश के लिए इतना अच्छा है कि उसको किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता।
तो ये था हमारा तीसरा कि लिक्विडिटी का होना बहुत जरूरी। और चौथा है लॉ। अब लॉ के लिए ऐसा है कि जैसे मैं ये कहूँ कि जितनी देर तक किसी कंट्री का लॉ एंड ऑर्डर मजबूत नहीं होगा, किसी एफडीआई करने लोग नहीं आएंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। क्योंकि जितनी देर तक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अच्छे से काम नहीं करेंगी, जितनी देर तक लोगों को ये भरोसा नहीं होगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है भी नहीं है, तो उतनी देर तक हम टेक्नोलॉजी या फॉरेन की जो कैपिटल है वो नहीं लेके आ सकते। जो चीजें हम 10 दिन में बनाते हैं, हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अब तो हमने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, तो हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आने से हम वो चीजें जो 10 दिन में बनाते हैं वो 1 दिन में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की जो लॉ है वो लॉ का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बहुत सारे लॉस चेंज भी किए हैं जो आउटडेटेड थे, जैसे वो इंस्पेक्टर राज है वो खत्म कर दिया गया है। जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी जितनी लेयर थी वो उनको कम कर दिया गया है। अब आपने सिंपल एक लेटर देना है, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है नहीं, इतनी अगर चीज आसान हो जाएगी। अब इनकम टैक्स देख लो, इनकम टैक्स सिंपल एक फॉर्म है, आपने एक तो ठीक है उसको बहुत सिंपलीफाई कर दिया। जितना आप सिंपल करोगे उतना लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ज्यादा आगे आते हैं। तो ये है हमारे के कौन कौन से जो एरियाज हैं जहां पर हम फोकस कर रहे हैं। जैसे लॉ के अंडर ही है कि ब्यूरोक्रेसी बेसिकली हैज टू कम आउट ऑफ द कैबिन्स टू डोर स्टेप्स ऑफ द एप्लीकेंट्स। ये ब्यूरोक्रेसी को अब बाहर आना पड़ेगा, लोगों के डोर स्टेप तक जाना पड़ेगा। जैसे अब आपने सुना होगा कि प्राइवेट प्लेयर्स हैं, अब हर चीज है। अब जहां मर्जी जो ई कॉमर्स है, आप ट्रांजेक्शन करते घर बैठ के सारा कुछ पॉसिबल है टेक्नोलॉजी की वजह से। दूसरी है कि आपके डोर स्टेप के ऊपर डिलीवरी है, चाहे वो खाने की है चाहे वो चीजों की है। तो जितना लोगों के लिए आसान कर दोगे उतना ही लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। जो लेयर ऑफ अप्रोच अप्रूवल है खास तौर पर, इसको खत्म होना पड़ेगा, तो हम आत्मनिर्भर जल्दी हो सकते हैं। जैसे पहले एक के पास फाइल गई, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के, फिर तब तक तो टाइम हो जाता है। उस वक्त जब आपकी फाइल अप्रूव हो सकता है आपके प्रोडक्ट की डिमांड ही ना रहे। तो ये जो लेयर ऑफ अप्रूवल्स हैं बेसिकली दे हैव टू, उनको खत्म होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जो लॉस है, रूल्स हैं, जो प्रोसीजर हैं, इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये जो बेसिक चीजें हैं, ये आत्मनिर्भर ये जो मिशन है उसको पूरा करने के लिए हमें देखनी हो। ये बेसिक जो चीजें मैं आपको बताई हैं, ये इनके साथ साथ कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं। अब वो शॉर्ट कमिंग्स कौन कौन सी हैं? जहां पर गवर्नमेंट काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि वहां पर गवर्नमेंट की नजर नहीं है, लेकिन कुछ शॉर्ट कमिंग्स मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। पहली है, हमारे पास सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की जरूरत है। इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को अगर हम इस मिशन को प्राइम मिनिस्टर के इस विजन को मटेरियलाइज करना चाहते हैं, तो हमें सिविल सर्विस रिफॉर्म्स है वो देखने होंगे। उसमें कौन कौन सी चेंजेस जरूरत है उन चेंजेस। देन गवर्नमेंट रिफॉर्म्स। अब गवर्नमेंट रिफॉर्म्स में कैसा आ गया, इसमें ये भी हो सकता है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, टेस्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सैलरी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, कुछ इस तरीके के गवर्नमेंट की एजेंसीज को कैसे काम करना चाहिए, उनके लिए रूल रेगुलेशन नो डाउट लेड डाउन है। पर और रूल रेगुलेशन कैसे हो ताकि आम सिटीजन और इनमें कोई फर्क ना रहे। तीसरा है हमारे पास कुछ फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स में कौन कौन सी चीजें हैं हम ले सकते हैं, कहाँ से गवर्नमेंट फाइनेंस जनरेट कर सकती है, और कौन कौन सी ऐसी एरियाज हैं जहां पर हमें अभी भी जरूरत है कि ताकि हमारा पास ये फ्लो है फाइनेंस का वो बहुत इजी और आसान हो जाए। देन अर्बन रिफॉर्म है जो अभी भी परव्यू के अंदर नहीं
2020 वो शुरू हो गई है। ठीक है जी। अब हमारे पास कुछ ये भी है कि शायद वो 21 से स्टार्ट हो, कोई कहता है 22 से स्टार्ट हो, बट स्टिल इट इज इन द पाइपलाइन। एजुकेशन रिफॉर्म्स होना शुरू हो गए हैं। बेसिकली यू हैव टू बिल्ड यूनिवर्सिटीज, नॉट बिल्डिंग यूनिवर्सिटी। हमें बिल्डिंग नहीं चाहिए यूनिवर्सिटीज की, हमें यूनिवर्सिटी चाहिए ऐसी को जहाँ पर टेक्नोलॉजी बेस्ड है, हमारे पास इनोवेशन बेस्ड हमें एजुकेशन दे सके। देन इसके बाद हमारे पास स्किल रिफॉर्म्स हैं कुछ। अब स्किल रिफॉर्म्स में जैसे गवर्नमेंट ने ये एक अभियान चलाया था कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उसमें जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनको गवर्नमेंट अपनी कॉस्ट के ऊपर पैसा खर्च कर कर स्किल, जो नई नई स्किल्स हैं उस एरिया में वो देती है। और जो वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग जब देती है, जितना पैसा उनकी ट्रेनिंग के ऊपर खर्च होता है वो तो बियर करती है, लेकिन जब वर्कर्स को ट्रेनिंग देती है, जितनी देर तक वर्कर उन इंडस्ट्री में काम नहीं करते, जो लॉस इंडस्ट्रीज को होता है वो लॉस भी गवर्नमेंट ही पे करती है। तो स्किल रिफॉर्म्स की तरफ भी काफी काम शुरू हुआ है। लेबर रिफॉर्म में भी काफी चेंजेस आई हैं, लेकिन अभी और जरूरत है। तो जितनी देर तक हम लेबर रिफॉर्म नहीं करेंगे उतनी देर तक हम उतनी पेस से, उतनी स्पीड से ग्रोथ नहीं कर सकते। यू नो दैट कैपिटल इज हैंडीकैप्ड विदाउट लेबर एंड लेबर इज हैंडीकैप्ड विदाउट कैपिटल। तो जितनी देर तक लेबर और ये इसमें रिफॉर्म नहीं करेंगे और कैपिटल जो है जनरेट नहीं करोगे, तो उतनी देर तक हम आत्मनिर्भर जो है उसमें थोड़ा बहुत और पीछे रह सकते हैं। अदरवाइज मेरे ख्याल में जो ये विजन दिया है, एक सोच है, बहुत अच्छी सोच है। मैं जहां से स्टार्ट किया था वहां फिर लेके आना चाहता हूँ कि कोई भी घर, कोई भी शहर, कोई भी स्टेट नहीं चाहती कि उसको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़े। बेसिक जरूरतें हैं वो तो कम से कम अपनी हर कोई चाहता है कि मैं पूरी कर लूं। पेरेंट्स भी तभी खुश होते हैं जब उनका बच्चा कुछ कमाने लग जाए, अपने पांव के ऊपर खड़ा हो जाए। तो इसीलिए एक अच्छा लीडर है, अच्छी सरकार है, वो भी तभी खुश होगी जब उसका अपना देश आत्मनिर्भर हो जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं इस सेमिनार की जो अगली कड़ी के वक्ता है प्रोफेसर संदीप चांना, उनको दूंगा ताकि वो अपने विचार आप लोगों के साथ शेयर करें। उसके बाद आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको हम एड्रेस करेंगे। जो भी होगी मैं देख लूंगा, या आप पूछ लो मैं बता दूंगा। ठीक है, ओवर टू प्रोफेसर संदीप चांना। Thank you, Salim sir. Thank you so much. We also have enabled our interactive session at the end of the webinar, students, in which you can type your questions in the chat box. Okay. So now it is my great pleasure to introduce Mr. Sandeep Channa as our resource person, who is Associate Professor in Economics in Kamla Lotia ST College, Ludhiana, with 28 years teaching experience in UG and PG classes. Channa sir, over to you. Thank you, ma'am. Thank you very much. First of all, I would like to thank management of RI College, Principal ma'am, Madam Rachna ji, Madam Ranju ji, and everybody in the team who made an effort. And we would like to share our views. Everything has been already said by Dr. Salim. I would like to add to that. I would like there should not be any repetition. So for a moment, I would like to come to the history of the objective, that is self-sufficiency or self-reliant India. Everybody must know, or you have already read about the Bombay Plan, which was envisaged before independence, and it was on the basis of that plan, or rather as an alternative to that plan, Mr. M.N. Roy was the propounder on the basis of Soviet type of planning, on which priorities were given to agriculture and small scale industries, in times with the principle, or rather in line with the principle of Gandhian philosophy of economic development. So self-sufficiency
as an objective during plan, gathered momentum in fifth 5-year plan, rather onwards from fifth plan to seventh plan, but somehow it could not get that importance which would have been given to that plan. But on the other hand, we should not say that sufficiency means elimination of external assistance. It is a dominance of internal, a very strong internal system rather than elimination from the external sector. Our worthy Prime Minister, Mr. Narendra Modi, took the initiative in the year 1920 about listening to the 5 I's to make India a self-reliant company. These 5 I's are intent, inclusion, investment, infrastructure, and innovation. A recent package, everybody knows the recent package of rupees 21 lakh crore is the best example. He emphasized that our industry should trust him. If industry, he said in his speech, maybe on 12th May 2020, that if industry takes 2 steps ahead, the government will take 4 steps forward. In this regard, or in this line, various reforms were taken in the form of, as Slim sir have already said, land reforms, labor reforms, agriculture reforms, commercial mining of coals. They were initiated to make Indian industry capable of producing their own products rather than depending upon other countries. As a matter of fact, the objective of Atmanirbhar Bharat was launched along with the program of Make in India, which was initiated when Mr. Modi took as Prime Minister chair in the year 2014. As a as a as a matter of fact, the spur of production and employment was the need of the hour that time. So by motivating the producers and providing business friendly environment, he helped foreign investors also. At that time, he helped foreign investors by providing a very strong industrial base locally to develop industrial corridor, to develop smart cities, to develop infrastructure, skill based. This is very significant that skill based courses gathered momentum in 2014. Universities and industries have been. Excuse me, there is some problem. Some mic is open. Hello. Okay, sir. Okay, sir, you carry on. We are removing. Okay. Okay. There is a policy regarding educational reform that skill-based courses will be initiated by the universities, and a committee of some university experts and industrial experts will be formed in this new education policy, so that only those courses are taken or carried which are important as an industrial base. Government participation with private sector. This is another significant aspect, that government's participation with public sector in industries will be carried. People should be made aware about the development in healthcare also. Everybody out of us, we are no doubt, along with education, we are worrying about our health, and during this COVID period, everybody was worried about the health issues. At our own, we did some exercises, we did yoga, etc. Walking was prohibited. We would like to go outside. We were not allowed to go outside our homes. So at domestic level, people are concerned about their health issues. So these are very important issues, health and education, which must get momentum. And there are certain challenges. For example, interaction of educational courses. Course. We don't know how to, which they should interfere. They should allow the university, or rather they should. Sorry, sir, you are not audible. Hello, Channa, sir.
हाँ जी, आवाज में अब आ रही है, अब आ रही है। थोड़ी Okay, ब्रेक। okay. So Sir. one was the promotion. Sorry, one was promotion of MSMEs. Then Reliance 5G network. He has already discussed to promote fertilizer industry. And farmers can choose their own price. They can choose their own market to sell their products. Slogan, very famous slogan: "Be vocal for local." And appreciate local products. We all should appreciate local products. Earlier we are doing so, but sometimes it is seen that we are internally we are something else, and then when we do things practically we are different. But practically, for me, we should always vocal about our products. Then we should produce more so that we can export more from rest of the world. One, and then we can fulfill our local demands. This is very important. Healthcare sector is gaining momentum. There is a toll-free number. I can quote the number 844. If anybody would like to note this number, a toll-free number is 844-844-0632. 844-844-0632. This number was launched on 17th May 2020. This is for the students of schools and colleges which are facing any difficulties about their subjects. They can contact on this number. Then there is an Atmanirbhar app was started on 4th July 2020. App that is GOI space MEITY and ALMTO LMOVAT. These two apps were launched. Even there is another significant aspect is that we can share our views. We can share our views about Atmanirbhar Bharat on atmanirbharbharat.mygovernment.in. Then another very significant idea was launched, that is banning of 59 Chinese apps. If we ban some, we are very curious कि हमें कुछ apps जो है वो हमने बैन करी. हम लोग जब बैन करते हैं तो अब तभी ये बैन करते हैं ना जब हमारे पास domestic avenues होते हैं, domestic ideas होते हैं, है ना? Then borrowing limits for state governments to be increased from 3% to 5%. Privatization of public sector, e-trading of agriculture, then one nation, one card as a matter of fact. Then affordable rural housing, affordable rural housing complexes under Prime Minister Awas Yojana. Then free goods during COVID was also given to the migrants. FDI limit has already been increased in defense from 49% to 70%. I would not like to repeat the facts and figures which have already been discussed. Some of the challenges we may face, that is lack of demand, growing fiscal deficit, and difficulty of mobilizing resources from RBI to banks and from banks to citizens. And the most important challenge we are going to face, or rather we are facing, is our brain drain. Most of the people who are getting knowledge, getting information here in India, they would like to build their future abroad, because in abroad government they think that governments are doing much better things to the young people. Our government is also doing many things for the young people. Very soon we will be getting a scheme of work permit for students, that is 100 rupees per hour. एक स्कीम बनाई जा रही है, जल्दी ही लॉन्च हो जाएगी. 100 रुपीज पर आवर जो है वो स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग देयर स्टडी वो मिलेगी. 4 घंटे वो रोज काम कर पाएगा. तो दैट टाइप ऑफ स्कीम्स may stop brain drain. With all, I take your leave. Thank you very much for listening me so patiently. Now, it is open for the house to discuss the various. Thank you, sir. Now I'm going to handle the mic to Madam Kiran. She will ask the questions on the behalf of students. Salim sir and Channa sir. Over to Madam Kiran. Namaste, sir.
सर कुछ बच्चे पूछना चाहते हैं कि क्या हाँ, बस मैं वो एक पढ़ा है उसमें जो चैट बॉक्स में मैडम, वो उसने पूछा सिविल सर्विस में भी कैसे रिफॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, हाँ जी जैसे सर। सिविल सर्विस का एक रिफॉर्म है, मान लीजिए हमारी जो एज लिमिट है वो और नंबर ऑफ चांसेस हैं वो फिक्स्ड हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास 3 चांसेस हैं, हो सकता है 3 चांसेस के लिए मेरी कुछ सिचुएशन ऐसी हो मैं ना दे पाऊँ, या कुछ इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी हो, या कहीं मेरे को माइग्रेट करना पड़ जाए, या किसी वजह से मैं प्रिपेयर ना कर पाऊँ। नंबर 1। नंबर 2, कोई एज लिमिट है। जैसे मान लीजिए कोई 50 ईयर्स ऑफ जो एज का है पर्सन है, वो क्यों नहीं सिविल सर्विस के एग्जाम दे सकता। इसीलिए नॉट ओनली सिविल सर्विस, बाकी अदर सेक्टर्स में है। एक आदमी है, वो उसका इंटरेस्ट 50 ईयर्स के बाद मेडिकल साइंस में होता है, वो मेडिकल साइंस में अपनी सर्विस क्यों नहीं दे सकता। तो इस तरीके के जो रिफॉर्म्स हैं, खासतौर पर मैं सिविल सर्विस की बात करूंगा क्योंकि बच्चे ने वही पूछा है। तो एज लिमिट नहीं होनी चाहिए, जिस मर्जी एज में, इफ ही इज इंटरेस्टेड टू सर्व विद द फुल पोटेंशियल, देन ही मे बी अलाउड टू enter or to appear in the exam. Then chances should not be fixed. So there may be so many hurdles if you are appearing in the examinations. So certain constraints or certain restraints may be there. So the number of chances, no doubt, कुछ हम ifs and buts लगा सकते हैं, कुछ condition लगा सकते हैं, लेकिन उनको चांस जरूर देना चाहिए। ये 2 मेजर चेंजेस हैं जो हम सिविल सर्विस में कर सकते हैं। फिर मेरिट बेस होना चाहिए। इसमें कोई, मेरे मुताबिक कोई ऐसी मार्क्स में रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गरीब फैमिली से आता है, उसको आप इकोनॉमिक पैकेज दो, उसको आप फाइनेंशियल असिस्ट करो, लेकिन मार्क्स में नहीं। जो परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस में किसी को भी पीछे नहीं होना चाहिए। अगर मेरे 80% मार्क्स हैं, एक बच्चे के 40% मार्क्स हैं, तो 40% वाले को क्यों प्रेफरेंस, 80 वाले को क्यों नहीं। ठीक है, अगर आपको उसको रिजर्वेशन देनी है या कहीं कुछ आपने उसको फायदा देना है, तो उसकी कोचिंग फ्री कर दो, उसकी ट्यूशन फीस फ्री कर दो, उसके जो चार्जेस हैं वो फीस फ्री कर दो, उसको एक्स्ट्रा कोचिंग दे दो, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट कर दो। लेकिन कंपटीशन में, इफ यू आर रनिंग अ रेस ऑफ 100 मीटर्स, 100 मीटर तो सभी को रन करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कहोगे कि 50 मीटर रन करने वाला फास्ट है, 100 मीटर रन करने वाला सेकंड आ जाएगा। आई थिंक सो ये थोड़ा सा अजीब सी सिचुएशन होती है। दिस इज माय। यस, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज। सर कुछ बच्चे पूछना चाहते हैं कि क्या आत्मनिर्भर भारत और कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज कंपैरेटिव एडवांटेज कॉस्ट थ्योरी। हाँ, देखो ऐसा है इसमें मैडम, जब हम कंपैरेटिव एडवांटेज कॉस्ट थ्योरी की बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां हम शिफ्ट करते हैं, तो उसके लिए पहली कॉस्ट हमें ज्यादा देनी पड़ती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कम हो जाती है। मैं इसकी एक एग्जांपल दूं, जैसे हम सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सलीम सर आपकी हमने आवाज नहीं आ रही। कंप्यूटर जो, हेलो हेलो, हाँ सर आप बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ, सर। मैं ये बात कर रहा था, जैसे हमने कंप्यूटर, हाँ, जैसे हमने कंप्यूटर को इम्प्लीमेंट किया है ना, जो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसको हम अपनी लाइफ में लेके आए, तो पहले पहले इसकी कॉस्ट हमें ज्यादा देनी पड़ी। इसलिए ज्यादा देनी पड़ी क्योंकि हमारे पास रिटेंचमेंट हुई, जो एम्प्लॉयमेंट थी वो कम होगी, जो लोग एम्प्लॉय थे हमारे उनको निकालना पड़ा, क्योंकि हमने जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी है वो हमें कॉस्टली पड़ा। जो हम एडवांटेज कॉस्ट की बात कर रहे हैं, कंपैरेटिव कॉस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन विद द पैस ऑफ टाइम अब यही देखिए, यही कंप्यूटर, यही मोबाइल जो आपने पहले कभी 50,000 का या 1 लाख रुपए का खरीदा होगा, अब वही स्मार्टफोन आपको 10,000, 15,000, 20,000 की प्राइस में अवेलेबल है। तो फर्स्ट इंस्टेंस में नो डाउट यू हैव टू बियर विद ऑल दीज टाइप ऑफ द चेंजेस, लेकिन विद द पैस ऑफ टाइम यू हैव डेफिनेटली यू विल मैनेज। तो वो सारी चीजें आपको चीप लगती हैं, सस्ती हो जाती हैं। तो इनिशियल स्टेजेस में आत्मनिर्भर होना, नो डाउट इट विल पे, एंड वी ऑल हैव टू पे, एंड वी हैव टू सैक्रिफाइस सम एट सम एक्सटेंट। लेकिन लेटर स्टेजेस में
ये चीज ठीक हो जाती है, पहले पहले होता है ऐसा। यस, एनी अदर क्वेश्चन? सर जैसे कुछ चाइनीज कंपनियां जो हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, फिर हम उसको किस कैटेगरी में डालें, आत्मनिर्भर में कि नहीं डाल सकते उनको? नहीं नहीं, आत्मनिर्भर में तो नहीं डालेंगे। एक्चुअली क्या है, वो हमें प्रोडक्ट देती हैं, एम्प्लॉयमेंट देती हैं, लेकिन वो इनकम जनरेट करके अपने पास ले जाती है। अगर हमने उनको कुछ कंडीशन के ऊपर बेस हम जो एफडीआई लेके आते हैं, जैसे आप कोई बैकडोर एंट्री नहीं होगी, नंबर 1, आप रॉ मटेरियल यहाँ से लोगे, नंबर 2 आप एम्प्लॉयमेंट यहाँ से जनरेट करोगे, नंबर 3 आप प्रोडक्ट यहीं बेचोगे, नंबर 4 आप इतने % यहीं इन्वेस्ट करोगे, तो हम आत्मनिर्भर में वो एक असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। लेकिन फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उनको बनाना और सिंपल इस पर्पस के लिए बुलाना कि वो बस आए और इन्वेस्ट करके अपना पैसा लेके चली जाए, तो ये एक ड्रेनेज होगी। इसको हम आत्मनिर्भर नहीं कहेंगे, वो एक हर्डल होगी रादर। हम तो उनको इसलिए बुलाते हैं ताकि हम उनके टेक्नोलॉजी को जान सके, उनके मेथोडोलॉजी को जान सके, वो इनोवेटिव वे से कैसे काम करते हैं उनको जान सके, ताकि उसके बाद हमारे एम्प्लॉय उसी तरीके की जो है इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर सके। तो ये बेसिक पर्पस होना चाहिए। अगर हम मेयर जस्ट टू शो एंड टू हैव अ फॉरेन रिजर्व, वी आर इनवाइटिंग, नो डाउट फॉरेन रिजर्व इज आल्सो एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी। तो हमारे पास फॉरेन रिजर्व है जो कि रिक्वायर्ड लिमिट से भी ज्यादा है, ठीक है नहीं? तो अब वो तो समस्या हमारी पूरी हो गई है। उसके बाद जो जितनी भी कंपनी बाहर से आती हैं, अगर वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, कैपिटल फॉर्मेशन होती है और इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करती है, इट इज असिस्टेंस इन द आत्मनिर्भर भारत। Thank you, sir. Yes. That's all, sir. Any other question? No, thank you, sir. Okay. So now I will invite Madam Rachna, Head of Department Economics, for the vote of thanks for today's webinar. Madam Rachna. Good morning, all. On behalf of Arya College, I take this opportunity to propose vote of thanks who directly or indirectly contributed to this webinar on Bharat, Atmanirbhar Bharat, organized by our department. I thank our chief guest and resource persons, Dr. Salim and Mr. Sandeep Chana from KLST College, Ludhiana. We are really enlightened with your knowledge and presence, sir. We are thankful for our Honorable Secretary, Madam Tisha Sharma ji, and Principal Dr. Savita Uppal ji for their motivation. I would like to thank Madam Suksham Ahluwalia, Coordinator, IQAC, and in charge Women's Section for her support. A special thanks to Organizing Committee, teaching and non-teaching staff, and very heartfelt thanks to our students for their active participation. Thank you all. Thank you very much. Thank you on behalf of both of us, ma'am. All of you, everybody in the webinar, please switch on the cameras for a group photograph. साथ ही आ जाओ, तुम लोग आ जाइए। हाँ जी राजेंद्र जी, आप प्लीज बता दीजिए जब कैमरा हो जाएगी फोटो। Yes, done. It's done. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. You can leave, students, all of you. You can leave. Thank you. Thank you, students. God bless you all.